Open University. I cordially invite and welcome Dr. Narendra Chotalia, sir. We are proud as well as thrilled to have you, sir, in our 5-day online workshop on quality accreditation with NAC and institutional preparedness. I also welcome our enthusiastic participants for this first session of the day 5, which is the last day of our ongoing workshop. Now, I would introduce Dr. Naren Chotalia sir. Dr. Naren Chotalia sir is a former director cum CEO of Knowledge Consortium of Gujarat, as well as ex-OSD of Commissioner of Higher Education, Government of Gujarat. Sir has a vast and enriched experience of 34 years for teaching and research. You have a specialty on grading system of NAC. Basically, a professor of mathematics, Dr. Narendra Chotalia sir is a pioneer in academic and administrative audit, that is AAA of Knowledge Consortium of Gujarat, and have prepared 300 AAAs of colleges and universities of Gujarat state, which actually was awarded by Prime Minister also. He has mentored Saurashtra University of Gujarat to be the first A-grade university in Gujarat, and Gujarat Ayurveda University to be the first A-grade university in health sciences sector in Gujarat, having highest CGPA among all the state universities. He has mentored Narsi Munji Institute of Management Studies and MIMS Mumbai for assessment and accreditation process, that is A&A process. So I welcome Dr. Naren Chotalia sir on behalf of the team of SICA of Madhya Pradesh Bhoj Open University. We cordially invite you, sir, for your session. Thank you very much. It is my privilege that I have been invited. Am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay. Video is not seen. Sir, your video is not visible right now. Okay, madam. Okay, madam. I'll start. Yes. Okay, I'm sharing the screen first of all. ये जो टॉपिक है, challenges faced by institutions in a document and how to overcome it. This is the first one. Second is challenges faced by institutions in analysis and how to overcome. Third is drafting, collecting, analysis of feedback, and performance review meeting. These are 4 points have been given to me to discuss on this. Let me try. After 12:30. This topic was given me yesterday when I was traveling. I reached at home at 11 o'clock. So it has become a challenge for me. Without PPTs, I would like to discuss with you. You will have, I'm enjoying. First part is for documentation. Documentation you have, that is most important part. Without documentation, the assessment is not possible. Whether it is done by
DVV partner or peer team members. I'm sorry, I'm not connecting the camera at present, because I think it indeed needs not. In place of it, okay, I have connected the tablet so that I can write something, whatever I want to write. So this is the important part, that is documentation. डॉक्यूमेंटेशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सी, अगर हम कहें कि हमारे पास ये है, हमारे पास 400 कंप्यूटर्स है, तो कौन मानेंगे? हम तो कह देंगे, हम तो लिख भी देंगे अपने पोर्टल पर कि कॉलेज हैज, यूनिवर्सिटी हैज दिस मेनी कंप्यूटर्स, but without providing them the documents, will they accept whatever we claim? No. अगर हम assessor है, माना कि हम खुद DVV पार्टनर की जगह हम काम कर रहे हैं, हमारा रोल है DVV पार्टनर की जगह, तो हम क्या, जो भी HEI कहें कि हमारे पास ये है, हम मान लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, मानना भी नहीं चाहिए। विदाउट proper documents, why should we accept? It means documentation is very important part, it's a crucial part in assessment and accreditation process. If we fail to prepare documents, it means we will fail for accreditation process. हम उम्मीदें रख सकते हैं कि हमें A++ ग्रेड मिले, A+ ग्रेड मिले, या तो A ग्रेड मिले, अच्छी बात है। हमारा टारगेट हमेशा के लिए ऊंचा ही रहना चाहिए। हम मानते हैं, हमेशा के लिए मानते हैं कि हमारा टारगेट जो होता है, हमारा गोल जो होता है, वो ऊंचा ही होना चाहिए। लेकिन सिर्फ टारगेट बड़ा करने से कुछ बड़ा नहीं हो सकता, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कहाँ पर है? वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। और इसीलिए यहाँ पर एक मैडम ने जो टॉपिक लिखा है, वो जिसने चैलेंज लिखा है। वैसे ये चैलेंज की जब बात आती है, तो इसके साथ एक हम याद करते हैं, स्वॉक लिखते हैं ना, SWOC, वो लिखते हैं। तो स्वॉक इज अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, W weakness, ये जो दोनों है, these are two factors, those both of them are internal, these are internal, ये अपना है, वो अपना खुद का है। माना कि मैं कॉलेज हूं, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। इफ आई एम ए पर्सन, इट इज माई स्ट्रेंथ और माई वीकनेस, ये इंटरनल है, these are internal factors, whereas O and C, if we think about O and C, so O for opportunities. So what are the opportunities? What are the opportunities we have, and what are the last challenges? Earlier it was known as threat, एक threat कहते थे, threat, अब threat की जगह ले ली हम challenge की। तो ये opportunity है, ये challenge है, ये both are external factors. Let me tell you first of all, ये जो है opportunity and challenge, तो ये challenge है मेरे लिए भी। माना कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए चैलेंज है, विदाउट PPT एक चैलेंज है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? आई मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इट। मेरी वीकनेस क्या है? वो भी मुझे जानने की जरूरत है। वीकनेस जो है, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ मेहनत की जरूरत पड़ेगी, उसको हाइड करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और मेहनत कहाँ पर? मेहनत करने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। आई शुड यूज स्ट्रेंथ, है ना? स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वीकनेस को जान लेते हैं, स्ट्रेंथ को जान लेते हैं, और इसके हिसाब से हम जाते हैं चैलेंज को फेस करने के लिए। चलो, ये हमारे पास एक चैलेंज है कि हम हमारी इंस्टीट्यूशन का, हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी कॉलेज का एक्रेडिटेशन करवाना है।
एक्रेडिटेशन करवाएं, नेक्स्ट से करवाएं, वो इंस्टीट्यूशनल है। तो एक हमारा इंस्टीट्यूशन कैसा है, एज एन इंस्टीट्यूशन, हाउ आवर इंस्टीट्यूशन इट इज, ओके। तो उसके लिए वो हमें ग्रेड देंगे, कुछ स्कोर देंगे जिसको हम सीजीपीए कहते हैं। लेकिन वो सीजीपीए कैलकुलेशन करने के लिए असेसमेंट तो करना पड़ेगा, और असेसमेंट करने के लिए उन लोगों को चाहिए डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इज वेरी मच क्रूशियल फैक्टर फॉर अस, इट्स अ क्रूशियल पार्ट। और हमेशा के लिए मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है कि जो जो कॉलेज जिसको बहुत कम ग्रेड मिला है, जैसे कि सी ग्रेड मिला है, या तो कहते हैं कि सीजीपीए जो है बहुत बहुत कम मिला है, इसके पीछे का एक ही कारण है, मैं बोलता हूं एक ही कारण है, वो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, डॉक्यूमेंटेशन। अभी गुजरात की ही बात बताता हूँ। गुजरात में ही एक भावनगर यूनिवर्सिटी है जहां मैंने एमएससी किया था मैथमेटिक्स, और एमबीएड भी मैंने वहां किया था, एमएड अलग अलग जगह पर किया था। तो वो यूनिवर्सिटी, भावनगर यूनिवर्सिटी, अच्छा काम कर रही है। Let me tell you, in comparison of Saurashtra University, which became first A-grade university in Gujarat state, in comparison of that university, भावनगर यूनिवर्सिटी का जो काम है वो बहुत अच्छा है, बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा है। About quality, if I speak about the quality is bigger, higher than that of Saurashtra University. क्योंकि मैं जानता हूँ, दोनों यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, बहुत नजदीकी से देखा है मैंने। लेकिन भावनगर यूनिवर्सिटी जो है उसको क्या ग्रेड मिला है, उसको मिला है ग्रेड सी, और क्वालिटी बेहतर है, और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को ग्रेड मिला ए। बिकॉज ऑफ, क्यों, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन यही है, रीजन इज नंबर 1, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब यही होता है, अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी कहाँ से शुरू होनी चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होनी चाहिए। और कम से कम मैं तो कहता हूँ, अगर असेसमेंट करवाना चाहते हैं हम, तो वी शुड हैव एटलीस्ट टू years. लेट मी टेल यू हियर, वी मस्ट हैव 2 years, 2 years। आपको लगेगा कि ये 2 साल की क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपका टारगेट जो है वो ए है, या तो ए प्लस है, या तो ए डबल प्लस है, वहां तक पहुंचना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव 2 years फॉर द प्रिपरेशन। क्यों प्रिपरेशन के लिए 2 साल की जरूरत है? क्योंकि लास्ट 5 years का असेसमेंट होता है कि लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर्स में इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, उसका असेसमेंट होना है, क्या किया है। हर एक अलग अलग क्राइटेरियन वाइज देखें, हर अलग की इंडिकेटर वाइज देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जिसको मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक वाइज देखें। तो असेसमेंट करते हैं, हम अपने आप का असेसमेंट करें, करना ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशन को पहले अपने आप को चेक करना चाहिए, खुद का अप्राइजल करना चाहिए कि हम कहाँ पर है, वेयर वी आर। सपोज, छोड़ो नेक को, छोड़ो, before going to applying for NAC assessment, we must check our status। ये internal part है, दोनों चेक करना चाहिए कि yes, what is our strength and what is our weakness। we may be weak in documentation, तो हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। और ये दोनों को साथ में रख के हमें जाना है, और एक क्वेश्चन के ऊपर जाना है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक, जिसको बोलते हैं हम मैट्रिक कहते हैं। तो हर एक मैट्रिक के हिसाब से हम कहां पर है, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व अवरसेल्फ।
ये हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हर एक मैट्रिक पे जाए कि मैट्रिक नंबर 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ये तीनों मैट्रिक जो इंडिकेटर नंबर 1 में है, तीनों में हम कहाँ पर है। अगर हमारा असेसमेंट खुद कर रहे हैं तो हम इसको कितना स्कोर दे सकते हैं, तो स्कोर की बात बता रहे हैं तो 4 आउट ऑफ 4 दे सकते हैं, 3 आउट ऑफ 4 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं। हम अपना असेसमेंट करें, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हमें जब अपना इंस्पेक्शन करते हैं, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो बिल्कुल हमें हार्शली करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ हार्शली करना चाहिए, जो बिल्कुल लिनियंट नहीं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। स्ट्रिक्टली हमें हमारा इंस्पेक्शन करना चाहिए। इस मैट्रिक 1.1.1 में अगर हम पीयर टीम मेंबर है तो हम कितना स्कोर दे सकते हैं। 1.1.2 में अगर हम जो है वो पीयर टीम मेंबर है तो हम कितना देंगे। अगर 1.1.3 जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक में है, अगर हम खुद डिलीवरी पार्टनर है तो हम कितना दे सकते हैं, और इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ये हमें अपने हर एक क्वेश्चन को सामने रख के देखना है, और इसके हिसाब से देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक है जिसमें हम 0 दे सकते हैं, अपने आप को 0 दे सकते हैं, या तो 1 दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं। तो ये है हमारी वीकनेस। दिस इज द एनालिसिस। ये खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान फॉर 2 इयर्स प्लान, है ना, 2 इयर्स प्लान। और ये 2 साल, इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 इयर्स, 2 साल की जरूरत है। इसमें हमारी जो वीकनेस है हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर 0 है। जीरो में से हमें 1 2 3 एटलीस्ट 3 तक पहुंचना है। हमें सोचो, एटलीस्ट हमारा 3 तक टारगेट होना ही चाहिए। 0 से 3 तक, 1 से 3 तक, 2 से 3 तक पहुंचना है, कम से कम 3 तक पहुंचना है। और जिसमें हमें 3 मिल सकता है यहाँ पर, तो 3 या 4 उसको सस्टेन करना है, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन, माना कि हमारे पास 96 क्वेश्चन है तो 96 क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारे पास 130 क्वेश्चन है, अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी है, देन वी हैव 130 क्वेश्चंस, 130 मैट्रिक्स। तो 130 मैट्रिक्स को देखना है हमें, हर एक को परखना है, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली अपने आप को एसेस करें तो हम कितना दे सकते हैं, 0 1 2 क्या दे सकते हैं। अगर 3 या 4 दे सकते हैं तो अच्छी बात है, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो ये 2 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 2 साल में कुछ एक्टिविटीज नहीं की है। ऐसा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से, माना कि एक क्वेश्चन यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस कटिंग इश्यूज रिलेवेंट टू जेंडर, environment and sustainability, human values, प्रोफेशनल एथिक्स, तो इसके ऊपर Got paused, किसी ने लिखा है pause हो गया है। Sir, can you hear me? हमारे स्पीकर की तरफ से कुछ पावर कट की इशू है,
5 से 7 मिनट पे he'll resume once again. आप थोड़ा इंतजार करें, शायद बिजली चली गई है हमारे स्पीकर जहाँ से बोल रहे हैं. सभी प्रतिभागियों का पुनः अभिवादन। जब तक हमारे विषय विशेषज्ञ जुड़ते हैं तब तक मैं एक सूचना दे दूं कि चूंकि आज हमारे 5 दिवसीय राष्ट्रीय आभासी कार्यशाला का आखिरी टेक्निकल सत्र चल रहा है, तत्पश्चात 3 बजे से ये सत्र हमारा 1 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ओपन फोरम रखा गया है, जिसमें हमारे इस कार्यशाला में अब तक जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ, उनके अतिरिक्त हमारे अन्य कुछ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, जो कि आपके द्वारा दिए गए चैट बॉक्स के क्वेश्चंस को लेंगे। अब हमारे विषय विशेषज्ञ दोबारा से जुड़ चुके हैं, तो अब सत्र आरंभ होता है। सर आप जुड़ चुके हैं? आई एम रिक्वेस्टिंग यू चौटलिया सर, आप जुड़ चुके हैं क्या? आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉल कर। Hello, am I audible now?
Yes, sir, you are very much audible now. Okay. Sir, please go ahead. जी जी, हाँ चलो कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड चैलेंज नो। ये हमारे सामने कुछ डिजास्टर भी होते हैं। हम सोचते हैं कि हम विद इन टाइम ये सब पूरा कर लेंगे, तो कभी होता है कि हम नहीं कर पाते, कुछ ऐसे डिजास्टर आ जाते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, पावर कट, एक फ्लक्चुएशन आया है ना पावर में, और हमारे हमारे करीब 5 से 10 मिनट हमारे ये बिगाड़ दिए। तो ये है, बस हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इसका मतलब हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि हाउ मच वी शुड बी, हाँ वी शुड प्रिपेयर। तो आई वाज स्पीकिंग अबाउट द 2 years। व्हाई डू वी नीड 2 years? हाँ 2 years क्यों, 2 साल क्यों? क्योंकि ये जो है एवरेज लेने के लिए है। माना कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में क्या होता है कि 20-20 मैच खेलते हैं, तो फर्स्ट 14 आवर्स में जो एवरेज होती है, माना कि वो 5 रन की है पर ओवर, तो बाकी बचे 6 ओवर्स, और हमारा टारगेट है टोटल 200 का स्कोर करना। तो ये 14 into 5 करेंगे तो होगा 70। तो स्कोर हुआ 70, पहले 14 ओवर्स में स्कोर बनाया 70, है ना। 14 into 5 करेंगे तो 70 हुआ, है ना? 1 मिनट, हाँ। लेकिन हमें चाहिए 200, तो बाकी 6 ओवर्स में तो कितने, 70 के हिसाब से देखिए तो 130 रिक्वायर्ड। तो 130 है ना, 130 डिवाइडेड बाय 6, इतना जो भी होता है तो कितना होगा, जरा देखिए। 6 to the 12, then 1 something 21 प्लस चाहिए लास्ट 6 ओवर में। तो लास्ट 6 ओवर में ऐसा खेलना पड़ेगा कि हर एक ओवर में कम से कम 21 रन आए, तो ही हमारा टारगेट जो 200 का है वहां तक पहुंचेंगे। अगर हमारा टारगेट 150 का है तो 80 सब मान लो, तो 80 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। तो मतलब ये हमारे पास लास्ट 5 इयर्स की बात कर रहे हैं हम। तो लास्ट 5 इयर्स में हमने क्या किया, हर एक मैट्रिक में क्या किया। तो जो 3 साल जो है निकल गए, कोई बात नहीं, इसका एवरेज जो भी निकलता है निकालेंगे। अब जो बच्चा है 2 साल, इसमें हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, अल्टीमेटली जो हमारा जो टारगेट है वहां टारगेट तक पहुंच पाए हम। माना कि यही बताता हूँ कि 3 साल में हमने जो प्रोग्राम्स किए, तो साल में 2 प्रोग्राम किए, मान लेते 2 प्रोग्राम किए हमने, तो 3 to 6, तो 6 प्रोग्राम हुए। हम दिखाना चाहते कि एवरी ईयर हमने 5 किए हैं। हमने हमने एवरी ईयर कितने 5 प्रोग्राम किए हैं। किसके लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस कटिंग इश्यूज relevant to gender, environment and sustainability, human values, professional ethics, तो एवरी ईयर हमने 5 तो किए ही हैं। हम दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब हमारे पास 25 प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन अभी तक हमें 6 ही किए। इसका मतलब यह है कि विद इन 2 years हमें 19 करने पड़ेंगे, तो ही हम कह सकते कि यस every year we could do 5 on an average, 25 होंगे, तो इसके हिसाब से हमारा असेसमेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम लास्ट 2 years में अगर हम करना चाहते हैं, अच्छा लेना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 साल बचते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 3 साल गुजर गए वो गुजर गए। अब ये भी सोच लो कि वो 2 साल भी नहीं है, हमारे पास 1 ही साल बचा है। हमारे सामने 4 साल तो बीत गए, जो भी आना था वो आ गया। अब हमारे पास बचा है 1 साल, ओनली 1 year। तो हमें क्या करना है, जिससे हमारा टोटल जो है वो हम चाहते हो एक्सपेक्टेड टोटल मिल जाए। इन दिस वे हाउ मच टाइम वी हैव, इसको देखो, इसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, इसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। हमें डॉक्यूमेंट्स, ओ
मैंने बोल दिया डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। सही बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे मतलब हम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एसओपी नहीं होंगे। लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू एसओपी नहीं होंगे। एसओपी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, एसओपी के हिसाब से नहीं करेंगे तो डीवीवी वाले जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डीवी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका मतलब वी विल लूज द स्कोर। तो ये तो हमें हरगिज मंजूर नहीं है, हरगिज मंजूर नहीं है। एक मैंने एक चीज बता दूं साथ में, मुझे याद आया है। तो बात मेन तो बात डॉक्यूमेंटेशन की है, और मुझे मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, देना ही पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट जो बनाने हैं हमें, डॉक्यूमेंट्स, all documents should be prepared considering the SOP, only SOP। SOP में जो मांगा है इसके हिसाब से, माना कि हमने एक्टिविटी की है, हमने इवेंट्स की है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू एसओपी वो नहीं है। इट मींस वी नीड टू वर्क आउट, वी नीड टू वर्क आउट टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। विदाउट डॉक्यूमेंट्स वी विल फेल। इसलिए बोल रहा हूं कि हमें डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे मतलब हमें इस तरीके से मॉडिफाई करने पड़ेंगे जो उन लोगों को चाहिए। और दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, दोनों के लिए, दोनों मतलब एक है डीवीवी पार्टनर और दूसरा सेकंड इज पीयर टीम मेंबर्स, पीटीएम जिसको कहते हैं, पीटीएम पीयर टीम मेंबर्स, और ये डीवीवी पार्टनर है। ये क्वांटिटेटिव के लिए है और ये क्वालिटेटिव के लिए है, दोनों के लिए। एक चीज मुझे याद आ रही है, कल मैं गया था गांधीनगर, तो वहां मुझे लेने के लिए एक उमिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता साठे आई और बोली कि सर मुझे 2 घंटे देना प्लीज। तो मैं अपने ऑफिस का काम निपटा के उसके साथ गया। हम तीनों लोग, मतलब वो थी, उसके हस्बैंड भी हमारे साथ थे, महोदय, पति महोदय। फिर हम 2 घंटे बैठे, फिर हमने किया क्या, हमने किया पोस्टमार्टम किया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम, उसके सामने मैंने बोला कि पोस्टमार्टम ही हो रहा है, क्योंकि वहां असेसमेंट हो गया, वो असेसमेंट पीयर टीम आ गई, उसका भी 4 महीने, कम से कम 4 महीने हो गए, और हम पोस्टमार्टम हर एक मैट्रिक वाइज पोस्टमार्टम करते थे। और कहाँ पर कितने कितने अगर कोर्स ने बताया कि सर हमें 11 मैट्रिक्स इसमें है, क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स जिसमें हमें 0 स्कोर मिला है, तो एक वाले कितने वो बताया हमने, 2 वाले कितने वो मैं लिखा है, हर एक के लिए, हर बहुत अच्छी तरह फाइल मेंटेन की उसने, संगीता जी ने। तो मैंने उससे बताया कि 0 क्यों दिए, जैसे कि हमने स्कॉलरशिप में, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के 0 मतलब ये 5.1.1 है। लेट मी टेल यू, वो है 5.1.1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड बाय द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो एक्चुअली हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली है, फिर भी हमें 0 मिला है। क्यों? हम तो अपील में जाना चाहते थे, आपने रोका इसलिए नहीं गए। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ही रोका था। जब मेरे से बात हुई कि मुझे हमें अपील में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने बोल दिया कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा, मैंने बताया, देखिए आपने मेरे साथ जो डीवीवी वेरिफिकेशन शेयर किया था, मैंने कहा डीवीवी वेरिफिकेशन में आपने जो कुछ भी दिखा है मैं मुझे रीड करना है, मुझे देखना है, आपने कौन से डॉक्यूमेंट दिखा है मुझे देखना है। मैंने देखा तो उसने डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रोवाइड किए थे जो डीवीवी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने बताया कि मैडम देखिए यहाँ पर 0 मार्क्स इसलिए मिले हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए 5.1.1 के लिए वो एक्सेप्ट करने योग्य मैं भी नहीं मानता हूँ। तो डीवीए को छोड़ो, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो आपको क्या देना चाहिए तो आपने क्या दिया है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज स्पीकिंग, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबसे अहम चीज है। इसके लिए हमें वर्कआउट करना ही पड़ेगा।
तो हम पहले देख लें कि हमारी वीकनेस कहाँ पर है। सबसे पहले हमें यही देखना है, जो खुद का एनालिसिस करते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस करते हैं, तो वो देखें कि हमारी वीकनेस कहाँ पर है। चलो तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये वाला। इज इट विजिबल टू ऑल? मैडम ये विजिबल है? ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, it is visible, sir. ओके ओके, थैंक यू मैडम। Go ahead, sir. हाँ, देखिए ये जो है ना, ये यूनी ट्रस्ट सूरजबाग महिला कॉलेज, मैंने बताया था कि ये ऐसी कॉलेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेट मी टेल यू, देयर आर ओनली 2 faculty members, only 2 faculty members are on regular basis, only 2, और 2 में से एक खुद प्रिंसिपल है, one is principal, okay, whose name is Dr. Asit Mehta, and another is a faculty of sociology, और इस कॉलेज को ग्रेड क्या मिला है, लेट मी टेल यू, इस कॉलेज को ग्रेड मिला है ए। इस कॉलेज का भी दिखा रहा हूं, यही कॉलेज है, ये है देखिए यहां पर, ये कौन सा पेज खोला है, मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये है इस पैनल में, मैं गया पर रिपोर्ट्स में गया, फिर ये असेसमेंट डिटेल्स मैंने क्लिक किया तो ये खुदा, देखिए ये खुदा, फिर मैंने क्लिक किया यहाँ पर डीवीवी लेकर क्लिक किया है, तो डीवीवी को क्लिक करने से ये पेज खुला है जो आप देख रहे हैं। चलो मैं पुराना पेज बंद कर रहा हूँ, ये खुला, तो वहां पर ये 2 है, एक्सटेंडेड प्रोफाइल डेविएशंस एंड सेकंड जो है मैट्रिक लेवल डेविएशन। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं 1.1, number of courses offered by the institution across all programs during the last 5 years. तो जो ओरिजिनली 187, 189, 194, 195, 175, ये ईयर वाइज, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में उन लोगों ने डेटा भर दिया कि हाँ ईयर 1 में, मतलब लास्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर जो जिसको 2019-20 वहां उसके लिए था, तो एक 187 कोर्सेज वर ऑफर्ड बाय द कॉलेज। लेकिन डीवीवी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि डेटा टेम्पलेट में क्या है और उसके हिसाब से काउंट किया, 155, 155 है, तो दिस इज डीवीवी सजेस्टेड इनपुट आफ्टर सबमिशन ऑफ एसएसआर, ये आया 155, देखिए, और एट द टाइम ऑफ क्लैरिफिकेशन डीवीवी वाले ने क्या लिखा, सेम कोर्स इन डिफरेंट प्रोग्राम हैव बीन काउंटेड एज वन एंड वैल्यूज चेंज अकॉर्डिंगली। अच्छी बात है, तो कुछ कोर्स जो है सेम रहते थे, कोर्स के नाम सेम रहते थे, मतलब एक प्रोग्राम 1 में, प्रोग्राम 2 में, प्रोग्राम 3 में एक ही टॉपिक पढ़ाया, मतलब एक ही पेपर पढ़ाया जाता है, तो तीनों में 3 बार काउंट कर रही है, 3 बार नहीं काउंट करने चाहिए, तो उन लोगों ने जो रिपीटेशन ऑफ काउंटिंग उसको हटा दिया, 155 कर दिया। फिर देखा, कॉलेज ने देखा कि ये बात तो सही है, हमने तो दिया था डीवीवी डेटा टेम्पलेट में, वो तो प्रोग्राम वाइज दिया था, उसके हिसाब से वो लिखना पड़ा था, तो उन लोगों ने जो कॉमन थे, जो इंटरसेक्शन में आते थे, उसको हटा दिया, तो 155 हो गए। कल मेरी बात हो रही थी डॉक्टर नायर मैडम से, शी वाज आस्किंग मी, सर कोर्स जो है, कोर्स की संख्या है वो प्रोग्राम की संख्या से अधिक हो सकती है या तो कम हो सकती है, तो मैंने बताया कि कोर्स की संख्या जो है
वो हमेशा के लिए अधिक ही होती है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में, हाँ, एक प्रोग्राम में कम से कम 10 सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, 10 पेपर पढ़ाते ही हैं। तो ये वैसे 3 साल का प्रोग्राम होता है, तो 3 साल में बच्चे कितने पेपर पढ़ते हैं, तो हर एक पेपर को कोर्स माना जाता है, हर एक पेपर को कोर्स कहा जाता है ना। तो ये जो है कोर्स की बात हो रही है यहाँ, ये बिल्कुल याद रखना, सब्जेक्ट एक होता है लेकिन सब्जेक्ट के अंदर पेपर्स अलग अलग होते हैं। तो रिस्पॉन्स पे क्या लिख दिया कि वी एग्री विथ यू, गिव मी सजेशन, और ये लास्ट कॉलम जो है वो आफ्टर प्री क्वालिफिकेशन, ये हम देख पाते हैं। आफ्टर गिविंग क्वालिफिकेशन सबमिशन करते हैं और प्री क्वालिफिकेशन पेज पे बाहर निकलते हैं, तब ही इसका लास्ट कॉलम हम वो जनरेट करते हैं। तो डीवी सजेशन रेकमेंडेड, तो रेकमेंडेशन में क्या दिया उन लोगों ने, फाइनली 155 उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, 155, 167, 165, 165, 147 ये है, ठीक है। तो ये बात कोर्स की बात जो कल मुझे नायर मैडम में हमारी डिस्कस हो रही थी, वो मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईयर वाइज ड्यूरिंग लास्ट 5 years। आपको लगेगा बात हो रही थी डॉक्यूमेंटेशन की, और यहाँ मुझे आप बता रहे हैं एक्टिव प्रोफाइल में क्या है, मामला क्या है। बिल्कुल नहीं, यहीं पर मैं आता हूँ, फिर एक बार वहीं पर आऊंगा मैं। यहाँ पर लिखा है 614 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 614 है, 614 है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को मिला के इतना ही होता है, क्योंकि वहां पर एक ही फैकल्टी चल रही है, वो है आर्ट्स, ओनली आर्ट्स, ओके। और तो यहाँ पर ये है, ये जो है ना, यहाँ पर जब देख रहे हैं ये 2.1, फिर ब्रैकेट में 1 पीडीएफ लिखा, वो देखिए पहले 2.1 था, फिर 1 लगा दिया, फिर इसके बाद एक और 1 लग गया, फिर एक नई फाइल बनी पीडीएफ, फिर उसको अपलोड किया गया। मतलब ये है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट करीब 4 या 5 बार चेंज करना पड़ेगा। दिस डॉक्यूमेंट was changed 4 to 5 times। बहुत इंपॉर्टेंट है ना डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए बोल रहा हूँ 4 to 5 टाइम। क्यों, ये भी जरा देखने जैसी बात है। उसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ जिससे आप देख पाए। ये जो है दिस डेटा, दिस इंफॉर्मेशन किस कौन कौन से मैट्रिक पर इफेक्ट कर रही है। तो 1.2.3 पर, 5.1.4 पर, 1.3.3 पर, 4.3.2 पर, 2.3.3 पर, 424, 344, 512, 511 एंड 2.2.2। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है, और इसके डॉक्यूमेंट ये इसके लिए है, ये जो लिखा है उसका डॉक्यूमेंट, इसका प्रूफ है यहाँ पर। और ये प्रूफ में अगर गलती हुई, मतलब यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई, मतलब इतने सारे मैट्रिक्स के जो स्कोर जो है वहां पर इसकी इफेक्ट मिलेगी, नेगेटिव इफेक्ट मिलेगी। एक ही डॉक्यूमेंट है, इतनी बड़ी वैल्यू है, देखिए। और वो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक यही कॉलेज की कहानी नहीं है। अक्सर मैंने देखा है हर एक कॉलेज वाले इसमें गलतियां करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मिसमैच होता रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिस इज। जरा देख तो ले कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके मैं बारे में बार बार बोल रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट कौन सा है। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, दिस इज द एडमिशन लिस्ट है, दिस इज एडमिशन लिस्ट, ये है एडमिशन लिस्ट। तो उन लोग मांगते हैं वो एडमिशन लिस्ट, और ये एडमिशन लिस्ट में ये भी लास्ट में उन लोगों ने दिया था, वो है। देखिए फिर एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ। तो उन लोगों ने फिर एक्सेप्ट किया, लेकिन इससे पहले हमने दिया था। तो एडमिशन लिस्ट मैंने कहा ये देखना देना है। एडमिशन लिस्ट ऐसी दो कि उनको एक ही डॉक्यूमेंट्स में से सब कुछ मिल जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोग्राम वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको वहां पर देखने को मिल जाए, ये होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कल तक की बात बोल रहा हूँ, कल तक की।
तो श्रीमंत माधवराज सिंधिया मॉडल साइंस कॉलेज ग्वालियर, जो उसका लास्ट डे था वो 10th था, 10th मार्च टू सबमिट द डिग्री वेरिफिकेशन। एक्सटेंशन मिला है 15 मार्च तक मिला है, और कल ही मिला है, लेट मी टेल यू। लेकिन अंत तक वो मुझे दिखाते रहे कि ये हमारा बाकी है, ये हमारा बाकी है। ये जो संभालती है, जो मैडम है ना, who is taking care of this 2.1 and 1. सॉरी, ये है 2.2.2, ये दोनों है साथ में जुड़े हैं। दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट मांगे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये मिस मैच हो रहा है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर नहीं, बहुत जगह पर मिस मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैच नंबर मैच करने जाते हैं तो वहां मिस मैच हो जाते हैं। ये मतलब ये कहाँ पर, ये ईयर मार्क वाले में, यहाँ पर ईयर मार्क वाले स्टूडेंट, नंबर ऑफ 6 ईयर मार्क्स रिजर्व कैटेगरी, वो ईयर मार्क कितने हैं और कितने एडमिटेड है। ये 2.1.2 है, वो ईयर मार्क है, इसके इफेक्ट कर रहा है ना। तो एडमिटेड कितने हैं इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एडमिटेड अकॉर्डिंग टू 6 ईयर मार्क। माना कि यहाँ बताया कि 135 ईयर मार्क रिजर्व 6 है, तो 135 में से आपने कॉलेज में कितने एडमिट हुए, कितने को एडमिशन मिला, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये यहाँ पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम वाइज हैं, कैटेगरी वाइज भी बनना चाहिए, और साथ में ये भी देखना है जब बनाते हैं तब ये जो ईयर मार्क वाली जो बात है उसको हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमारे यहाँ पर लिखा ईयर मार्क लिखे 135, लेकिन एडमिशन जो वो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं ना, तो वो तो हो जाते हैं 165 के आसपास, या तो 200 हो जाते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर हम उसको वो तुरंत ही क्लैरिफिकेशन में मांगेंगे, तुरंत ही मांगेंगे। अगर देख मैं बताना चाहूंगा, अगर है तो यहाँ पर मैट्रिक लेवल में ये 2.2.2 है, उसके बाद नहीं, देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट टीचर रेशियो है ना, स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ पर मांगा नहीं उन लोगों ने, 2 नहीं मांगा है, यस नहीं मांगा है, अच्छी बात है नहीं मांगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे देखिए, ये कॉलेज अच्छी कॉलेज है, मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस कॉलेज को बहुत ही कम, लेट मी टेल यू, बहुत ही कम डेविएशन मिले थे, बहुत कम, करीब 29 ही। बाकी कॉलेज के बारे में बताऊं तो ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर 22 है ना, नंबर ऑफ क्लेरिफिकेशन 22 है, और ये 6 यहाँ पर है ना, तो 28 है, 29 के लिए 28 है। लेकिन अभी अभी जो देख रहा हूँ, खास करके अभी भी मैं बहुत सारे कॉलेज, तो मोर देन 55, 57, 58, 59 ऐसे ही होते हैं। हर एक में क्लेरिफिकेशन मांगे। क्यों मांगना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सबमिशन कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किए हैं और अपलोड नहीं किए गए। ऐसे डॉक्यूमेंट बनाओ कि हमें कम से कम क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत पड़े। रही बात ये है एक्सटेंड प्रोफाइल में तो वो क्लेरिफिकेशन मांगते ही है हर एक में, क्योंकि कुछ ऐसे हैं यहाँ पर डेटा है जिसमें डेटा डॉक्यूमेंट्स मांगते ही नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन ही नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ क्लेरिफिकेशन वो मांग देते हैं, इसलिए मांगते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्यों हुआ, 135 जो है, ये यहाँ 155, देखिए पहले नंबर ऑफ क्रॉस, ये आई वाज हियर, आई वाज डिस्कसिंग हियर 135 पर, तो 135 के सामने 165 है, तो क्यों हो रहा है, तो हमें ये वहां पर एक कॉलम बनानी चाहिए, एग्जैक्टली एक कॉलम बनानी चाहिए। लेट मी टेल यू कॉलम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम जब बनाते हैं तो एक सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर जो भी है 1 2 3, फिर स्टूडेंट्स का नाम लिखते हैं, स्टूडेंट्स का नाम। ओके,
देखिए स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, तो पहले प्रोग्राम का नाम लिख दो यहाँ पर। प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं ना, प्रोग्राम। माना कि प्रोग्राम में एक बताता हूँ कि एमएससी है, तो एमएससी विथ मैथमेटिक्स है फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। फिर मैं क्या बना, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जेंडर, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, जेंडर मेल है फीमेल है, जेंडर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कौन सी कैटेगरी, ओके। एडमिटेड कैटेगरी, यहाँ पर क्लियरली लिखो एडमिटेड कैटेगरी। ये जो है एडमिटेड कैटेगरी, उसकी कैटेगरी कुछ भी हो, माना कि वो जो है वो खुद की कैटेगरी जो है, खुद की कैटेगरी जो है वो एससी है, लेकिन एडमिटेड कैटेगरी है वो जनरल है, क्योंकि जनरल के हिसाब से उसको एडमिशन दिया गया है। तो एडमिटेड कैटेगरी जो है, एडमिशन में जो मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, जनरल में। हाँ, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, कुछ हो सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब हम उसका समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन कौन सी कैटेगरी में मिला है, तो तुरंत ही उसके साथ मैच हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर एससी दिखाएंगे तो होगा एससी ज्यादा होंगे, ओबीसी ज्यादा होंगे, एसटी कम, जहाँ जहाँ एसटी मेजोरिटी है वहाँ एसटी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे भारतवर्ष में ये एरिया वाइज देखने जाए तो कहाँ पर कोई कम्युनिटी ज्यादा है, कहाँ कुछ कम है, तो वो तो डाइवर्सिटी है ही, तो उसके हिसाब से वहां पर कम ज्यादा होते रहेंगे। तो हमें तो यही देखना है कि एडमिशन किस कैटेगरी में दिया गया है उसको खास मेंशन करो, जिससे हमारा समरी रिपोर्ट सही बने। और हर एक फॉर ईच ईयर, माना कि ये जो है एकेडमिक ईयर जो है वो बनाते हैं 2021-22 के लिए बनाते हैं। एक बार फिर मैं खेद व्यक्त कर रही हूँ अपने स्पीकर डॉक्टर चौटलिया जी की तरफ से। उनके यहाँ फिर से एक पावर कट का एक कुछ इशू आ गया है, तो हम 5-7 मिनट फिर उनका इंतजार कर लेते हैं, पुनः रिज्यूम होंगे। आप कृपया थोड़ा इंतजार कर लें। आप सभी प्रतिभागियों से पुनः निवेदन है, जैसा कि पूर्व में भी निवेदित किया जा चुका है, आपके पास नैक से संबंधित यदि प्रश्न हो तो कृपया चैट बॉक्स में इस समय का उपयोग करते हुए डालें, जिससे कि हम उसे ओपन फोरम में ले सकें, जो 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। धन्यवाद।
हमारे विशेषज्ञ सर जुड़ गए हैं, बस अब आरंभ ही होने वाला है। हेलो हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, ये जो पावर कट की समस्या है ये आज ज्यादा हो रही है। हेलो, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल जो है वो हमें बताते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने चाहिए, जिसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ रहता है। हर एक जो इंफॉर्मेशन देते हैं मांगते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर रहता है ना। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक चीज मैं आपको आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कॉलेज ने मतलब HEI ने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने बताए थे? 412। अब देख सकते हैं कि कितनी, जहाँ 2 फैकल्टी रेगुलर है, बाकी के फैकल्टी है मैनेजमेंट ने अपॉइंट किए हैं, वो है काम कर रहे हैं। कॉलेज अच्छी तरह से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कहता हूँ कि कह सकता हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो बेस्ट काम कर रही है, ऑन ग्राउंड बिल्कुल बेस्ट काम कर रही है। इसको एक्रेडिटेशन मिले या ना मिले, सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखे तो इट इज द इंस्टीट्यूशन डूइंग फैंटास्टिक वर्क। बहुत सी स्टोरीज हैं जो हमें सुनने जैसी है, मोटिवेशनल स्टोरी हमारे लिए। जैसे कि मैं एक बताता हूँ कि वहां पर माँ और बेटी दोनों एक साथ पढ़ते हैं एक ही कॉलेज में। माँ और बेटी एक कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते हैं, दोनों साथ में आते हैं पढ़ने के लिए। बेटी 1 साल आगे पढ़ रही है, माँ 1 साल पीछे पढ़ रही है। ऐसी ऐसी स्टोरी वहां पर है। ओके, यहाँ की बात बता रहा हूँ चाहूंगा। यहाँ पर लिखे हैं 412, लेकिन डीवीवी ने सजेस्ट किया 55। जरा देखिए आप, 55 सजेस्ट, इट वाज सजेस्टेड बाय डीवी। और इतना इसमें लिखा कि HEI हैज मेंशन्ड टोटल 80 कंप्यूटर्स विद अबाउट 60 कंप्यूटर्स फॉर द स्टूडेंट्स पर्पस, including lab as mentioned in attachment in 4.3.2. HEI needs to verify the number of statements from head of HEI. Okay. फिर जब क्लैरिफिकेशन की बात आई वह देने के लिए, तो HEI क्लैरिफिकेशन है, उसने फिर एक बार लिखा कि हमारे पास 412 कंप्यूटर्स हैं। There is a clarification of our figures. Okay, please see the attachment attached documents for this. ये डॉक्यूमेंट अटैच किया, फिर इसका फल क्या आया? फल ये आया कि डीवीवी है ना, जो है HEI's clarification accepted में तो 412 कंप्यूटर्स मान लिए गए। बताऊं कि एक्चुअली कॉलेज के पास नॉट मोर देन 80 कंप्यूटर्स। कॉलेज हैज नॉट मोर देन 80 कंप्यूटर्स। फिर भी यहाँ पर इनपुट दिया था 412, वेरिफिकेशन में दिया 412 और एक्सेप्ट भी हुआ 412। क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये है डॉक्यूमेंटेशन की इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये डॉक्यूमेंट। Okay, UTS Male Arts College Media 3.3 number of computers and tablets. You see, they have considered tablets. Tablets को कंप्यूटर के हिसाब से माना गया। Actually, these tablets
were given by government of Gujarat through the university to the students. Okay, students of first year only. तो ऐसे 3 साल के काउंट करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स को टैबलेट मिले हैं। तो हर इसका एक रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये है उसमें आप उसको हम ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्स वेरिफिकेशन में क्या लिखा है। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टैबलेट्स टू आवर स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट गुजरात। Students use this very often over and above desktop computers for accessing their chosen books from Enlist and NDA. In the library as also outside, since they don't have to wait for an empty slot as also for access anywhere. कहीं से भी access कर सकते हैं। These tablets were extremely useful in attending online classes during the pandemic and consequent lockdown. Since many students were too poor to afford their own smartphone and the tablets provided as much bigger viewing area, all of which made for much more productive learning experience. Students also use said tablet for accessing the video lectures given by our faculty, where again a larger screen size is very beneficial. The students use Microsoft Office in the tablet. These include Word, Excel, PowerPoint presentation. These are some of ways in which our students use the tablets provided by the government through college, okay, for learning purpose. See, these are the tablets. फोटो भी अब देख सकते हैं, स्टूडेंट्स की फोटो है with the tablets. They are studying, students are studying. ये जो एनलिस्ट खोल के देखें यहाँ पर, है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एनलिस्ट ओपन किया है, स्टूडेंट एनलिस्ट का यूज कर रहे हैं। और ये स्टॉक रजिस्टर भी है, टैबलेट्स किसको कहाँ पर कितने को मिला है, हर एक का ये पूरा है लिस्ट है। ये है टैबलेट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिमार्क्स भी है। ओके, लिखा है फॉर स्टूडेंट्स टीचिंग लर्निंग पर्पस, ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये है पूरा एक जो स्टॉक रजिस्टर इसको कहते हैं, ये स्टॉक रजिस्टर ये था नहीं, मैंने बनवाया। ऐसा करो कि जिससे फायदा हो सकता है। हमें ये स्टूडेंट्स कंप्यूटर रेशियो में कंसीडर करवाना है। वैसे हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो इसका यूज करती ही है, एवरी डे दे यूज। लेकिन इसको हमें क्या करना होगा, वी नीड टू वर्क आउट टू प्रिपेयर सम डॉक्यूमेंट्स एज दे रिक्वायर। ओके, इस तरीके से आप देख पाएंगे all the tablets were considered as, और ये स्टॉक रजिस्टर भी है, डेट स्टॉक रजिस्टर भी दिखा दिया है पूरा। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ये है डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ कि जिससे फायदा हो हमें, हम जो कन्विंस करवाना चाहते हैं उसको हम कन्विंस कर सके। दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये है, देखिए, और अल्टीमेटली उन लोगों ने कंसीडर कर ही लिया, यस द इंस्टीट्यूशन हैज 412 कंप्यूटर्स। देखिए, दिस इज द इम्पोर्टेंस। और ये तो इससे भी इतना ही नहीं, यू कैन फाइंड हियर आल्सो, ये जो कहां पर इसका रेशियो है वहां देखिए, देख पाएंगे आप। दिस इज 4.3.2 में, लेट अस गो टू 4.3.2, इसका वहां पर वेटेज है 4.3.2, 4.3.2। if it is here we can find, देखिए यहाँ पर 3.44 है, फिर 4.4, यह है ही नहीं, वहां पर मांगा ही नहीं, लेकिन वहां पर इसका यूज कर लिया गया। कहां पर 4.3.2 में, क्योंकि बहुत से कम मैट्रिक्स है जिसमें उन लोगों ने वेरिफिकेशन मांगी। तो ये है वेरी मच इम्पोर्टेंस, है ना, ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या है, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि आपको जाना है कहाँ पर, अपने एसओपी में जाना है। एसओपी में साथ में क्या रखना है, अपना मैनुअल साथ में रखना है, गाइडलाइंस इसको कहते हैं, वो रखना है। दोनों साथ में रखे हुए देखना है कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर है
तो इसके अलग से इसकी फाइल बनाओ, क्राइटेरियन वाइज फाइल, क्राइटेरियन वाइज फाइल बनाएंगे तो बहुत बड़ी फाइल होगी। क्राइटेरियन में क्राइटेरियन 1 है तो इसमें की इंडिकेटर वाइज फाइल बनाओ। देयर आर 32 की इंडिकेटर्स, 32 है या तो 33 होंगे, 32 या 33 कॉलेज के लिए हो सकते हैं। यूजी है तो 32 होंगे, 33 होंगे, यूनिवर्सिटी के लिए हो 35 होंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब 35 तो की इंडिकेटर वाइज फाइल बनाते हैं। ये 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, 1.3 के लिए। तो वहां पर भी जब फाइल बनाते हैं तो वहां पर रखो कि हमें 1.1 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये क्राइटेरियन वाइज, की इंडिकेटर वाइज, मैट्रिक वाइज, मतलब क्वेश्चन वाइज, इसको इसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट जो है उसका रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और उसके पूरा लिस्ट बनाते जाओ और उसकी इसकी इंडेक्स बना दो। इंडेक्स सबसे पहले जब फाइल खोले तो तुरंत सबसे पहले इंडेक्स लिखनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर कौन से पेज पर रखा है। और जब हम लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए, परफेक्ट नाम, और इंडेक्स में देख सकते हैं। बनाना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हर एक फाइल के सामने, हर एक फाइल में उसका इंडेक्स होनी चाहिए जिससे पता चले कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखे हैं। कुछ लोग फ्लैग लगाते हैं, ये भी बात अच्छी बात, लेकिन अगर हम फ्लैग की जगह अगर हम लगा सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं तो बनाओ, इंडेक्स बनानी ही चाहिए, है ना। और हर एक डॉक्यूमेंट रखते जाओ, कौन से डॉक्यूमेंट बाकी रहे वो वो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं। चलो ये डॉक्यूमेंट है, ओके, इसके लिए कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। इस क्वेश्चन एक ही है, एक क्वेश्चन के लिए हमें 4 डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, 5 की भी जरूरत पड़ेगी, 1 की भी जरूरत पड़ सकती है। कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा। और दूसरी बात, एसओपी जो मांगते हैं उसी प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना है, उसी फॉर्मेट में बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग जो डेटा टेम्पलेट पे जो डेटा देते हैं एक्सेल शीट में, उसको ही पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की सिग्नेचर लगा देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये हमारा डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड करते हैं। अरे भाई, ये क्यों कर रहे हैं आप? उन लोगों के पास डेटा टेम्पलेट ऑलरेडी है ही, तो वही डेटा टेम्पलेट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करके देते हो। ऐसा मत करो, इससे तो हमारी जो है क्रेडिट हो खराब हो जाएगी। वो ये समझेंगे, उन लोगों को ये समझ भी नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहिए, ये समझ भी नहीं है। तो कम से कम इतना तो बताओ कि ना हमारे पास समझ तो है कि हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट ऐसे बनाओ कि उसको लगे कि यस, कॉलेज हैज प्रिपेयर्ड, कॉलेज हैज केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसके सच बनाए। तो वहीं से स्कैन करके दे रहे हैं, उसको ऐसा लगना चाहिए। या तो ऐसा लगना चाहिए कि कॉलेज के पास माना कि डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल फॉर्म में है तो डाउनलोड किए हैं और हमें हमें हमारे हमें हमें वो अपलोड करके दे रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। या तो स्कैन किए हुए लगना चाहिए, या तो ऐसा लगना चाहिए कि यस, दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द एलएमएस जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसको कहते हैं, उस सिस्टम से डाउनलोड किया गया है ना, वो है हमारे हमें वो पे अपलोड कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो डेटा टेम्पलेट से बनाए गए हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बनाने से हमारे मार्क्स कटेंगे, कम ज्यादा मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, हमें मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा था मैडम ने शुरू में ही कि ये जो स्वॉट एनालिसिस कैसे लिखते हैं, फीडबैक सिस्टम कैसे है, फीडबैक सिस्टम में हम क्या करते हैं, है ना। कुछ मुझे मुझे बहुत क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे क्वेश्चन क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आंसर देना, मुझे आंसर देने के लिए मेरे पास अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। एक चीज बता, आपके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है ये रिपोर्ट राइटिंग जो है, इज इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। पूरे एसएसआर में रिपोर्ट राइटिंग बहुत जगह पर मांगे हैं। कोई भी छोटी सी भी एक्टिविटी हुई है 1 घंटे की तो भी रिपोर्ट मांगेंगे, 1 दिन की तो भी रिपोर्ट मांगेंगे, 3 दिन की तो भी रिपोर्ट मांगेंगे, 1 सप्ताह का मानो कि वर्कशॉप चल रहा है वहां के 1 वीक तो भी मांगेंगे, या तो 28 डेज के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है फैकल्टी तो भी मांगेंगे।
तो for each and every activity or the event, college will have to या university will have to prepare the document. और डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, ओके अगर आप देख सकते हो तो प्लीज देखो और याद रखो क्यों कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए। ऐसे बनाओ रिपोर्ट हमारी, ऐसी बनाओ कि सिर्फ रैंक वालों को नहीं, अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग में जाते हैं है ना द टाइम्स में, तो भी वो एक्सेप्ट करें। इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाओ। तो पहली बात, कौन सा डिपार्टमेंट या तो कौन सा सेल या कौन सी कमिटी जो है इस एक्टिविटी कर रही है, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटी या तो ऑर्गेनाइजिंग सेल या तो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट वो। फिर ये जो भी इवेंट है उसका टाइटल यहाँ पर मेंशन करो। फिर नेचर ऑफ द इवेंट, वो कौन सा है, इवेंट कौन सी है उसका नेचर लिखो, ऑनलाइन है ऑफलाइन है ना, ये लिखो। फिर लेवल, कौन से लेवल का कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, यूनिवर्सिटी लेवल पर है एक्टिविटी हुई, इंटर यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, कौन से लेवल पर ये हमने वर्कशॉप किया गया, नेशनल लेवल पर है। डेट एंड टाइम, प्लेस और ऑनलाइन मोड जहां वो भी है ये हमें दिखाना है ना। फिर रिसोर्स पर्सन जो भी है 1 2 3 4 5 जितने भी है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अबाउट द रिसोर्स पर्सन, एक्सपर्ट्स, गेस्ट है कौन कौन से है उसके बारे, अबाउट रिसोर्स पर्सन ये हम मेंशन करना ही चाहिए। ओके, फिर हु आर द पार्टिसिपेंट्स, तो हमारे जो कैचमेंट एरिया जो है इसको कहते हैं, हमारे जो ऑडियंस जो है हु आर द पार्टिसिपेंट्स, हु आर द लिसनर्स, उसके बारे में यहाँ पर कौन कौन होंगे हम यहाँ पर ये। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, एलुमनाई है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट कौन कौन सा कौन कौन थे और कौन कितने थे, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। फिर उसकी अटेंडेंस शीट यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर मतलब इस पे आनी चाहिए ये दिस आर द पॉइंट्स, क्या रिपोर्ट में क्या आ सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आ सकती है, अंडर कौन सी स्कीम में ये आपने किया, कौन सी रुसा की ग्रांट से किया, वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से किया, कोई अलग ग्रांट से किया, कि फिलांथ्रोपस की ग्रांट से किया, कौन से, अंडर विच स्कीम द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। फिर कोलैबोरेटिव एजेंसी, ये कोलैबोरेटिव एजेंसी एक ये जो इवेंट हो गया तो एक्टिविटी है, कोलैबोरेटिव है या सोलो है, तो हमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी को कोलैबोरेटिव दिखा सकते हैं। माना अपनी कॉलेज में एनएसएस चल रहा है तो एनएसएस के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, एनसीसी के हो सकता है, अदर इंस्टीट्यूशन के साथ, अदर यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी कोई एनजीओ के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। वह एक क्वेश्चन भी है कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कितनी है, कितनी की है कॉलेज ने, नंबर ऑफ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, तो इसमें काम आ सकता है ये दिखाने के लिए। जब वो दिखाते हैं कि हाँ दीज मेनी एक्टिविटीज आर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, तो वहां पर क्या करना है इस रिपोर्ट में, जो कोलैबोरेटिव एजेंसी है और यहाँ पर दोनों को हाईलाइट करके दिखाना है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि यस दिस इज कोलैबोरेटिव एक्टिविटी या तो इवेंट। फिर किसी ने स्पॉन्सर किया है तो भी दिखा सकते हैं हु इज स्पॉन्सरिंग एजेंसी, है ना, तो वो दिखा सकते हैं। विच ग्रांट व्हाट यूटिलाइज, कौन सी ग्रांट यूटिलाइज की गई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्च हुआ, वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो एक्टिविटी की है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे आपने, और या तो उसका क्या कहते हैं कौन से आउटकम्स आपने सोच रखे थे, लर्निंग आउटकम जिसको कहते थे, एक्सपेक्टेड आउटकम्स कौन कौन से थे, मस्ट बी डिफाइंड। ओके, इज इट पार्ट ऑफ नेशनल ड्राइव, माना हो सकता है कि हम एक्टिविटी कर रहे हो वो नेशनल ड्राइव का कोई हिस्सा हो, माना कि स्वच्छ भारत अभियान जो है नेशनल ड्राइव है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मिशन है, तो अगर कोई ऐसे कोई नेशनल ड्राइव के साथ जुड़ा है तो भी हम ये बता सकते हैं। नंबर ऑफ सेशंस, कितने सेशन रखे गए थे, कंटेंट ऑफ द इवेंट्स, हर एक सेशन का इवेंट होते हैं, मतलब मुझे आज का टॉपिक दिया गया है दैट इज द कंटेंट, तो इसे कंटेंट क्या रहा, तो विश्व यहाँ पर हमें कंटेंट दिखाना चाहिए। एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटी की गई है ना, वर्कशॉप के दौरान कुछ एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी की, कौन क्या प्रोसेस की गई, कौन से इश्यूज को इंटीग्रेट किया गया है, मतलब यहाँ पर जैसे बोला है ना, ये मतलब ये फिर कौन से आउटकम अचीव हुए, कौन से बाकी रहे, तो ये भी है कौन से आउटकम ने अचीव किए, वो आउटकम अटेन्ड कह सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यूज किया, वो भी दिखा सकते हैं। फिर जो है एक सैंपल के हिसाब से देना चाहिए कि पार्टिसिपेंट को कौन सा कैसा सर्टिफिकेट दिया गया है ना। देन फीडबैक एनालिसिस और ग्राफ, फीडबैक जो है उसका फीडबैक लिया गया पार्टिसिपेंट्स का, फिर इसका एनालिसिस भी किया गया,
तो वो एनालिसिस करते हैं वो ग्राफिकल करना चाहिए, जिससे ग्राफिकली जो एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ग्राफिकली एनालिसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द लेमन टू। हम देखते हैं कि क्रिकेट में अलग अलग ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है कि इस ओवर में इतने रन गए, इस ओवर में इतने रन गए, इस ओवर में इतनी एवरेज थी। तो ये जो मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं हो वो भी लोग सोचते हैं कि हाँ देखिए इस ओवर में 5वीं ओवर में ज्यादा रन गए, 6ठी ओवर में कम रन गए। तो ये है ग्राफिकली प्रेजेंटेशन का। देखिए स्कोप ऑफ द इम्प्रूवमेंट अब ये हमने जो इन्वेंट की या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है या तो फ्यूचर के लिए क्या है इसका कोई प्लान बना सकते हैं, तो ये कैन मेंशन हियर। फोटोग्राफ जो हम लेते हैं खास करके अगर फोटोग्राफ अभी जो बताओ कि फोटोग्राफ जो लेते ही है हम अब तो हम जानते ही हैं कि दे ऑलवेज आस्क जियोटेक फोटोग्राफ। तो पॉसिबल हो तो जियोटेक फोटोग्राफ ही लें और हम यहाँ फोटोग्राफ विथ कैप्शंस रखें। सिर्फ फोटोग्राफ रखने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपको किसी कोई फोटो दिखाऊं और फोटो सिर्फ दिखाऊं इसके बारे में कुछ ना बताऊं तो क्या होगा विदाउट कैप्शन। या कैप्शन जो है मगर अगर मैं इसके लिए कुछ भी नैरेट ना करूं तो क्या फोटो को कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन उसके बारे में एक दो लाइन अगर मैं बोलता हूँ तो एक फोटो में क्या मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिखा सकते हैं। दैट्स वाई वही तो कैप्शन है। तो हमें कोई बोलना बोल क्योंकि हम सामने वाले को बोलते नहीं है, सामने वाले का बोलते तो है ही नहीं। विद द डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई द कैप्शन इज रिक्वायर्ड टू नरेट इट। ओके, मीडिया कवरेज अगर मिला है हमें हाँ हमारे इवेंट को, तो कौन कौन सी मीडिया कम है, कौन कौन से न्यूज़पेपर में या तो कौन से चैनल में दिखाया गया वो हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्लिप भी दिखा सकते हैं, उसका लिंक दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, रिपोर्ट सबमिटेड। रिपोर्ट जो है मैं रिपोर्ट सबमिटेड किसको सबमिट किया गया, किसको सेंड किया गया, ये रिपोर्ट किसको दिया गया वो भी दिखा सकते हैं। या इस अवार्ड या रिकॉग्निशन मिला हो इस इवेंट के हिसाब से किसी ने भी दिया हो, फेलिसिटेशन हुआ हो तो भी हम दिखा सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स हम बता दे हैं हर एक इवेंट के लिए बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई भी डीवीवी पार्टनर हो या कोई भी एजेंसी हो, they will हमेशा के लिए एक्सेप्ट करने वाले ही है ना। फिर इसके नीचे सिग्नेचर ऑफ द इवेंट इंचार्ज जो भी उसकी सिग्नेचर देनी चाहिए, और इसको जो हेड होते हैं इसके सिग्नेचर देनी चाहिए, या उसका स्टैम्प होना चाहिए, या डेट होनी चाहिए। तो इस इन दिस वे वन कैन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर द इवेंट। ओके, अक्सर मैं जो इसको मेंटर करता हूँ, जिस संस्थान के साथ मेंटरिंग में जुड़ता हूँ, तो हमेशा के लिए मैं करने से करवाता ही हूँ मैं कि चलो आपने जो भी रिपोर्ट बनाए हैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो इसके कन्वर्ट कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास इतने सारे रिपोर्ट्स होंगे उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट कहाँ पर देनी है, इस मैट्रिक में देते हैं, इस मैट्रिक में देते हैं, हर एक जगह पर एक ही रिपोर्ट हर एक में नहीं देनी है, हमें आइडेंटिफाई। देखिए क्राइटेरिया नंबर 7 में ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, क्राइटेरिया नंबर 3 में ये दिखाना चाहते हैं, क्राइटेरिया नंबर 5 में ये दिखाना चाहते हैं, क्राइटेरिया तो क्राइटेरियन वाइज हम दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही है जहाँ पर सबको दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जहाँ पर सिर्फ वो मांगते हैं कि भाई किसी और क्राइटेरिया में आपने मेंशन किया है तो वो मत यहाँ दिखाओ। तो हमें पहले से आइडेंटिफाई कर लेना ही है कि कौन से क्राइटेरियन में कौन सी रिपोर्ट दिखानी है। ओके, रिपोर्ट बनाते वक्त सोच लो, तो बनाते पहले ही बनाने से पहले सोच लो की बात नहीं, और इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। एक ये था। दूसरा दूसरा है वो भी मैं दिखाऊं, जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था, मैडम ने दिया था, वो था फीडबैक के बारे में मुझे पूछा गया था। एक फीडबैक फॉर्म में सामान्यतः कॉलेज को मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके फीडबैक के हिसाब से आप स्कोर पाना चाहते हैं कि क्राइटेरिया नंबर 1, तो क्राइटेरिया नंबर 1 में, क्योंकि फीडबैक जो है 2 जगह पर आते हैं, क्राइटेरिया नंबर 1 में भी है और क्राइटेरिया नंबर 6 में भी है, इसका यूज आ रहा है। तो ये एक कॉमन फीडबैक फॉर्म मैंने बनाया है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज फीडबैक फॉर्म। ये स्टेक होल्डर जो है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, एलमनस है या तो एलमना। जो एलमनस मतलब ये एलमनस इज यूज्ड फॉर मेल, एलमना इज यूज्ड फॉर मतलब सिंगुलर एंड गर्ल्स फीमेल, पेरेंट्स है या एम्प्लॉयर है, कोई डेट नेम स्टेट ओके एंड स्टेटस जो भी है वो अभी स्टेटस क्या है। एलमना है मतलब कोई एलमनी है तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, स्टेटस दिख सकते हैं कि पेरेंट है, एम्प्लॉयर है। फिर ये जो क्वेश्चन है, शुरू के जो क्वेश्चन है वो करिकुलम के ऊपर है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ करिकुलम,
पहला क्राइटेरियन जो है उसका टाइटल ही वही है, करिकुलर एस्पेक्ट। तो करिकुलर एस्पेक्ट में हम फीडबैक दिखाते, कुछ ओके फीडबैक फीडबैक फॉर्म रखते हैं और पूछते हैं ओके, और वही फीडबैक में क्या क्वेश्चन करिकुलम के आधार पर क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो हमें एक भी स्कोर 0 मिलेगा, 0 स्कोर मिलेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, किसी संस्थान को ऐसा 0 स्कोर मिला है, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो फीडबैक बताए गए थे उसमें 0 आया। फिर मुझे पता है फिर वो मेरे पास आएगा सर हमें 0 मार्क मिला है, फिर हम फीडबैक फीडबैक हम तो लेते ही है, एनालिसिस भी करते हैं, और इसे एक्शन टेकन भी दिखाया गया, लेकिन कुछ नहीं माना उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि फीडबैक जो लिए गए थे वो टीचिंग लर्निंग के ऊपर लिए गए थे, हमारे टॉयलेट कैसा है, हमारा प्लेग्राउंड कैसा है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर लिए गए थे, लाइब्रेरी कैसी। तो देखिए करिकुलर एस्पेक्ट क्राइटेरिया नंबर 1 है, मतलब ये क्राइटेरिया नंबर 1 को तो सोचो, करिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर कहाँ कौन से क्वेश्चन है आपके, तो है ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बनाया, तो हम इस तरीके तो पहले करिकुलम के आधार पर ये कुछ क्वेश्चन रखे, माना कि क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स आर देयर सिलेबस में। ये जो है पीरियोडिकली अपडेटिंग होता है सिलेबस में, कि डेप्थ ऑफ द कोर्स कवर्ड इन द सिलेबस, ये एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं, ये जो कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे होने चाहिए जो करिकुलम के ऊपर डिपेंडेंट होने, करिकुलम के आधारित होने चाहिए। सेकंड जो है टीचिंग लर्निंग और इवोल्यूशन के आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग आपको कैसा लगा, एक्सीलेंट लगा, वेरी गुड लगा, गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, क्या है। तो वो अपने जो 7 स्केल है, 5 स्केल है, कितने स्केल में आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से हमें वो फीडबैक दे सकते हैं। तो टीचर्स अप्रोच कैसा है, सिलेबस कवर बाय द टीचर्स कैसा है, टीचर्स प्रिपेयर फॉर दिस क्लासेस कैसे, ये क्वेश्चन कैसे है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हमें रखे हैं जो लर्नर सेटिस्फेक्शन सर्वे या तो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे एस जस्ट जो कहते हैं, उसके में उसमें भी कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं, हमें लेना भी चाहिए। थर्ड जो है इट मैंने आई हैव टेकन द सम क्वेश्चन रखे हैं हमने जो फैसिलिटी के बारे में, क्लासरूम की फैसिलिटी कैसी लगी आपको, एक्सेलेंट लगी, वेरी गुड लगी, गुड लगी, कैसी लगी, पुअर है, सेमिनार हॉल है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, रीडिंग फैसिलिटी है, एक्सेस रीडिंग फैसिलिटी और एक्सेस कितना है, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम है, क्लीनलीनेस कैसी है, प्लेग्राउंड फैसिलिटी, आईसीटी फैसिलिटी एंड अदर्स में, कल्चरल एक्टिविटी कैसी हो रही है, एनएसएस की एक्टिविटी कैसी हो रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसी, डिसिप्लिन के बारे में आपकी क्या राय है, सेफ्टी के बारे में आपकी क्या राय है, सिक्योरिटी बारे में आप कितना कितना स्कोर देना चाहिए, बिहेवियर ऑफ एडमिन स्टाफ, ये भी क्वेश्चन आता है। इंटरेक्शन विद द जब इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, जब इंटरेक्शन के साथ स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करते हैं कि हमेशा से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो जब एडमिन में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं अपने काम के लिए, एडमिशन के लिए या तो किसी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, कोई और फीस भरने के लिए, तो एडमिन स्टाफ का बिहेवियर आपके साथ कैसा है। So in this way, we can find, we can get, we can collect the feedback, excellent, good, satisfactory, disability, जो भी है। यहाँ पर मैंने 4 स्केल बनाए, 4 की जगह 5 बना सकते, 7 बना सकते, वट एवर यू लाइक। हमें 0 या स्कोर भी देना चाहे तो भी दे सकते हैं। तो एक ऐसा फीडबैक फॉर्म बनाओ। फिर माना कि टोटल कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका एनालिसिस करना है, हमें 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 एनालिसिस करना है थ्रू द एक्सेल शीट। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है उस क्वेश्चन को एक्सेल शीट में डाल देना, कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर उसके सामने कुछ नंबर लिख देने हैं, है ना। एक्सीलेंट में ये सब कॉलम बनानी है, एक्सीलेंट, गुड, सैटिस्फैक्टरी, इसमें तो ये चीज भी लिख देना है। ये एक्सीलेंट कितने आए, गुड कितने आए, ये सब लिख देना है। फिर इसके हिसाब से हमें चार्ट प्रिपेयर करना है, वहां पर चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो चार्ट प्रिपेयर करना है। तो आपको अपने आप ये सब चार्ट बन जाएंगे, एक्सेल कितने, एक्सीलेंट वाले कितने, गुड वाले कितने, सैटिस्फैक्टरी वाले कितने, तो ये हर एक क्वेश्चन के सामने मिल जाएंगे। दैट इज एनालिसिस। फिर हमें जो हमें मिलेगा कि जो इसमें डिससैटिस्फैक्टरी है या तो सेटिस्फैक्टरी मिलता है, उसमें हमें एक्शन टेकन की जरूरत है। माना कि यही है कि ये प्ले ग्राउंड के बारे में है, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, तो हमने आप कॉलेज ने किया कि हम दिखा सकते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, और इसके अलावा ये है कि सजेशन मांगना ही है। तो देखिए ये सजेशन है, तो सजेशन जो स्टूडेंट ने दिए गए थे या सुझाव दिए गए थे, तो उसके ऊपर हमने क्या काम किया, इसकी हिसाब से मान छोड़ो, तो यहाँ पर सजेशन के हमने क्या काम किया वो हम दिखा सकते हैं, हम एक्शन टेकन में। तो लास्ट 5 इयर्स में, कौन से ईयर में हमने क्या सुधार किया, कौन से स्टूडेंट्स के कौन से फीडबैक के हिसाब से, ये जो है, जो लास्ट वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव फीडबैक, और ये बाकी सब जो है वो क्वांटिफाई हो सकते हैं।
तो ये इसी तरीके से हम फीडबैक सिस्टम के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, है ना। फीडबैक फीडबैक को बनाना ही चाहिए। और दूसरी बात, यही जो है क्वेश्चन को हम गूगल फॉर्म में बनाए, बहुत आसान रहता है। मैं तो हमेशा अपनी मेरी राय ये है, मेरा सुझाव ये है, मेरी एडवाइस यही है कि अब छोड़ो, पेपरलेस बनाओ, गूगल फॉर्म अपनाओ। गूगल फॉर्म के जरिए ही हम फीडबैक लें। स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ लिंक शेयर करनी है, लिंक दे देंगे, लिंक खोलेंगे तो फिर अगर गूगल फॉर्म में मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएंगे, जैसे क्लिक कर देते हैं मिल जाएंगे हमारे पास। तो इससे फायदा ये होता है कि अब हमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑलरेडी एनालिसिस क्लिक करते हैं, एनालिसिस बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। विजिटर हमें इसको फिर डाउनलोड करके दिखा देता है। फिर देखिए, हमें गूगल फॉर्म भी दिखा सकते हैं, ये गूगल फॉर्म जब फॉर्मेट फील्ड फॉर्म लेना है तो इसका फील्ड फॉर्म भी हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि डिग्री क्वालिफिकेशन के दौरान मांगते हैं कि आपके जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, एलुमनाई है, पेरेंट्स है, एम्प्लॉयर है, एकेडमिक जो भी है, उसके जो फीडबैक आपको मिले हैं, नहीं ऐसे 5 फीडबैक अपलोड करो अपनी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, और उसका लिंक हमारे साथ शेयर कर दो। तो हम कैसा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्वालिफिकेशन के दौरान ये मांगते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं करें। तो हमेशा के लिए मैं मानता हूँ कि फीडबैक फॉर्म जो है गूगल वाला ही वो बनाओ, आसान रहेगा, क्योंकि हमें झंझट ही मिट जाएगी पेपर की। ये हमें बड़ी बड़ी फाइल बनानी पड़ेगी हमारे पास पेपर। भाई ये वो सिर्फ इतना ही नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि हम ग्रीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया नंबर 7 में है ग्रीन प्रैक्टिस। तो हम दिखा सकते हैं कि यस, हम ग्रीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेपर लेस, पेपर से पेपरलेस की ओर जा रहा है, लेस पेपर से पेपरलेस की ओर जा रहा है। तो ये हमारी ग्रीन प्रैक्टिस है, हम दिखा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने की कि जो टॉपिक मुझे दिया गया था उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। और एक चीज और बताऊंगी आपको। ओके देखिए, एक मिनट, ये मैंने एक बार शायद देखो दिखाया था, फिर एक बार वही दिखाने जा रहा हूँ। जो कॉलेजेस मेरी बात सुन रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक चीज है ऑप्टेड आउट मैट्रिक्स रिपोर्ट। तो मैंने डिस्कस किया था मेरे पहले सेशन में। तो हमें शुरू शुरू में ही देख लेना, आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए कि विच मैट्रिक वी शुड ऑप्ट आउट। और वो ही हमारे लिए, जो जिसको ऑप्ट करते हैं ना, इसका मतलब ये हमारी वीक पॉइंट है, ये हमारे लिए ग्रे एरिया है, हम कह सकते हैं। ओके, जो स्वॉक एनालिसिस बनाते हैं ना, स्वॉक एनालिसिस, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये हमारे लिए। देखिए, ये है मैट्रिक वाइज, है ना। मैट्रिक वाइज है परफॉर्मेंस ऑफ मैट्रिक्स इन करिकुलर एस्पेक्ट, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। फिर ये रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्सेज। और ये सातों क्राइटेरिया हम इसमें आ जाते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये देखिए कितने स्कोर मिले यहाँ से। 1.1.1 में इसको मिले हैं 3, इसमें मिले 1.1 में 3, उसको यहाँ पर 1.1.3 4 मिले हैं। तो ये 4 मिले हैं मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसमें 4 मिले हैं मतलब बेंच मार्क, 1.2 पॉइंट में 4 मिले, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये है। तो ये स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं स्ट्रोक, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस। तो ये है चैलेंज, स्ट्रेंथ है। जब स्ट्रेंथ लिखते हैं ना, तो एट दैट टाइम हमें ये लिखना चाहिए कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये है। ये जो 1.2.3 ये कॉलेज की स्ट्रेंथ है। लेकिन ये 1.3.2 जो है, 1.3.3 जो है, इसमें बिल्कुल स्कोर नहीं मिले, 0 स्कोर मिले हैं, है ना, 0 स्कोर मिले हैं। इसका मतलब ये है वीकनेस है इसकी। तो जब भी स्पोक एनालिसिस लिखे, हाँ, तो एट दैट टाइम उसको लिखना चाहिए कि ये हमारी वीकनेस है। तो आपको लगेगा कि अभी हमारा असेसमेंट हुआ ही नहीं, तो हम कैसे पता चले, हमको कैसे पता चले कि हमें 0 स्कोर मिला है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम खुद अपने एसेसर बन जाते हैं, हम अपने आप को स्ट्रिक्टली एसेस करते हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि हमें अपने आप को स्ट्रिक्टली एसेस करना है, और जो भी है उसके हिसाब से हमें एसेस करना है। और हमें इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर, ये हमारी वीकनेस है, हमें वहाँ स्कोर कम मिल रहा है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है इसके, हमारे पास डेटा भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, दोनों है।
तो मतलब हमें नेक का असेसमेंट होगा, वहां पर भी स्कोर कम मिलेगा या तो 0 मिलेगा, और तो हम सामने से ही क्यों ना बता दे कि ये हमारी वीकनेस है, चलो लिख देते हैं ये हमारी वीकनेस नंबर 1, वीकनेस नंबर 2। तो ऐसे हमारा ये भी है 2.2.2 जो है, ये 2.2.2 क्या है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो में स्कोर कॉलेज को स्कोर कितना मिला है, 0 ही मिला है। और इतना ही नहीं, 2.3.3 ये जो है स्टूडेंट मेंटर रेशियो है, मेंटर मेंटी रेशियो, उसमें भी 0 मिला है। तो उसको भी वीकनेस में डालना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर रेशियो इज हाई, ये हमारी वीकनेस है ना। तो इस तरीके से हमें अपनी वीकनेस जो है इंटरनल स्कोप एनालिसिस बनाते हैं, तो हमारी वीकनेस लिखनी ही चाहिए, दिखानी ही चाहिए, है ना। क्योंकि और हम ढूंढे बाहर, बाहर से कोई ढूंढे नहीं, ऐसा नहीं, इसके हिसाब से ढूंढना है हमें, इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वीकनेस कहाँ पर, कौन से क्वेश्चन में, कौन से मेट्रिक में है, हम आइडेंटिफाई करें और हम बताएं। वरना क्या होगा, हम नहीं बताएंगे तो वो कोई और ढूंढ लेंगे और वो लिख देंगे कि कॉलेज की वीकनेस ये है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो हम जो लिखते हैं अपने एसएसआर में जो लिखते हैं हमारी SWOT एनालिसिस में, उसमें से ही वो अपने पीआरटी रिपोर्ट जब राइटिंग करते हैं एट दैट टाइम उसमें से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये होता है। एक चीज मैं आपके साथ ये और शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्वांटिटेटिव में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्वालिटेटिव में इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं कि दोनों में मुसीबत है, दोनों ही मुश्किल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, गुजरात की ही कॉलेज में मैं गया था एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ओके, जब नेक की पीए टीम आई थी एट दैट टाइम, मैंने देखा कि पीए टीम जो बिहेव कर रही है संस्थान के साथ, कॉलेज के साथ, वो बिल्कुल सही नहीं था। मैंने तो बताया, थोड़ा कुछ बताया, है ना, लेकिन मैं इतना कुछ नहीं डेवलप कह सकता था क्योंकि आई वॉज जस्ट एक्सटर्नल पर्सन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। तो उसको मैंने देखा कि अल्टीमेटली इस कॉलेज को अच्छा स्कोर नहीं दिया गया क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में। इसके पीछे का कारण भी बताना चाहूंगा, इसके पीछे का कारण भी बहुत दुखदायक है, क्योंकि वो पीयर टीम मेंबर्स को पता ही नहीं है कि हमें क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछना है, उसको एसेस करना है। वो पूछते हैं कॉलेज में जाके, चलो आपके रिसर्च आर्टिकल दिखाओ, आपका रिसर्च एरिया क्या है। अरे भाई, उसका तो असेसमेंट हो ही गया है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में, आप क्यों इसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको 2 दिन का ही वक्त मिला है असेसमेंट करने के लिए, आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके और उसको ध्यान में रखते हुए स्कोर देते हैं। अरे क्या बात हो रही है। This is absolutely injustice with the college or university, whatever HEI is. Absolutely wrong. मैंने एक चेयरपर्सन से बात भी की, उन लोगों ने कहा कि ये कॉलेज के पास ऑडिटोरियम ही नहीं है। मैंने फिर बोला, मैडम जी ये ऑडिटोरियम है या नहीं है ना, ये हमारा काम नहीं है। क्लासरूम जो है, कितने क्लासरूम है, नंबर ऑफ क्लासरूम, वो तो दिखाई दी, उन लोगों ने दिखाए हैं ऑलरेडी। इसके हिसाब से स्कोर बनना था, वो मिल ही गया है। और तो वो बताती, वो पूछती कि कॉलेज के पास तो इतने ही टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट रेगुलर, बाकी तो है ही नहीं। मैंने कहा मैडम, उसमें इसी में क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में ये 2.4 जो बोल रही है टीचर क्वालिटी एंड प्रोफाइल, उसमें फुल मार्क्स मिले हैं, फुल मार्क्स, और आप और इसको ध्यान में रखिए वो मार्क्स काट रही है, क्या बात है। तो ये बहुत दुखदायक है। मैं मानता हूँ हमें ऐसा सोच के चलना चाहिए कि हमारे सामने जो पीए टीम आएगी वो सबसे खराब आएगी। बी रेडी फॉर द वर्स्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। एंड हम अपने आप का काम कैसा होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए बेस्ट। तो बेस्ट वर्सेस, है ना, वर्स होना चाहिए। तो ऐसा काम करना, ऐसा। चलो मैडम, लेट मी गो टू मैडम। कितने पौने कितना टाइम होने जा रहा है मैडम। हेलो
मैडम मैं स्टॉप नाउ और सर पार्डन वी आर नॉट एबल टू हियर यू, आपने अभी क्या बोला? अच्छा मैं अभी पूरा कर सकता हूँ अपना सेशन यहाँ संपन्न कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आपका जितना आप समय लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, एक चीज, हाँ, जिसको भी क्वेश्चन हो, किसी को क्वेश्चन हो वो हमें लिख के भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी को जरूरत है तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर भी क्वेरी भेज सकते हैं। क्या नंबर दे देना है ना सर, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे, इको हो रहा है जी। ओहो नंबर लिख लिया। ओके ओके ओके, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9426928329। ये व्हाट्सएप नंबर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये है ना, व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेरी आएगी तो कोई बात नहीं, आई मेक टू आंसर द क्वेश्चन। जी 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 और जी, सो काइंड ऑफ यू सर टू शेयर योर नंबर जी। हाँ है ना, आपको सर ओपन और फोरम में भी हम एक्सपेक्ट करें, टॉक टू यू अर्लियर सर। जी 3 से मैडम, 5 जो 4:30 हमारा ओपन फोरम का कार्यक्रम होगा, जी उसमें मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम सर। जी मैडम, जी मैडम। जी जी तो विथ योर परमिशन शुड आई स्टॉप शेयरिंग? ओके जी सर जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, sir. Alone we can do so little, together we can do so much. As Helen Keller has rightly quoted, we can grow with the help of others, and respected Narendra Chotalia sir has exactly done so today. On behalf of Center for Internal Quality Assurance, SICA team of Madhya Pradesh Bhoj Open University, Bhopal, I extend a really hearty thanks to our today's expert, Dr. Narendra Chotalia sir. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and will surely going to encourage and help us in our preparation of NAC assessment. Your splendid and engrossing session has been very useful. We look forward to you, sir, in today's open forum at 3 p.m. as well as in our future endeavors. Many thanks to you, sir. थैंक यू मैडम। वेलकम सर। अब प्रतिभागियों हेतु अति आवश्यक सूचना। आप जैसा कि आपको विदित है, हमारी कार्यशाला का आखिरी दिन है और अब हमारे समस्त तकनीकी सत्र समाप्त हो चुके हैं। अब अपराह्न 3 बजे से 4:30 बजे तक ओपन फोरम रखा गया है, जिसमें पिछले तकनीकी सत्रों के लगभग सभी विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। वे आपके प्रश्नों का, जिन्हें चैट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित किया गया है, का समाधान करेंगे। तत्पश्चात 4:30 बजे से 5 बजे तक इस कार्यशाला का वैलिडिटी सेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनवलकर सर करेंगे। कार्यशाला हेतु धन्यवाद ज्ञापन हमारे सीका टीम के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कुलश्रेष्ठ करेंगे। इसके पश्चात अभी सभी प्रतिभागियों हेतु एक और आवश्यक सूचना कि वैलिडिटी सेशन के तुरंत बाद आपके चैट बॉक्स पे एक लिंक शेयर की जाएगी, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट के 25 सरल प्रकृति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसा कि हम पूर्व में कई बार अनाउंस कर चुके हैं। इसके साथ साथ चैट बॉक्स में उसी लिंक में आपको फीडबैक की, जो इस कार्यशाला से संबंधित है, कि एक प्रश्नावली भी छोटी सी होगी, आपको इसे अटेम्प्ट करना है। और जैसा कि आपने पूछा है चैट बॉक्स में, कई प्रतिभागियों ने पूछा है कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उनके मेल पर समस्त कार्यशाला की रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। और आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार कि आपने पूरे अनुशासन से कार्यशाला में अभी तक अपनी सक्रिय प्रतिभागिता की है।
और एक और अनुरोध कि आप 10 मिनट पहले जुड़ेंगे। टेस्ट में जरूर भाग लें। और 3 बजे जब हमारा अगला सेशन शुरू होगा तो टेस्ट में तो आप 10 मिनट पहले जुड़ेंगे और लिंक का टेस्ट जो टेस्ट की लिंक है वो शेयर की जाएगी आपको चैट बॉक्स में। To see you all at sharp 3 p.m. at open forum. Thanks a lot.